بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ بوڑھا بھی شاہ جی کے سامنے بیٹھا تھا، لیکن وہاں عورتوں کی بارات سی اتری ہوئی تھی۔ ان میں سے کچھ اسے ان کی ننکیوں سے دیکھ رہی تھی، شاید سوچ رہی تھی کہ ایک بوڑھے کا شاہ جی سے کیا کام، جادو تو صرف عورتوں پر ہی چلتا ہے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ بوڑھا کس جہنم سے گزر رہا ہے۔ اس نے اپنی آدھی زندگی یعنی پورے 25 سال کس کرب سے گزارے ہیں۔ یہ بوڑھا تب جوان ہی تھا جب ایک بدبخت عورت نے چند 100 روپے خرچ کر کے ایک فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے کالے جادوگر کی بنگالی ساحر سے اسے ایک ایسے جہنم میں دھکیل دیا تھا کہ جس کا کنارہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ جوان بوڑھا ہو گیا تھا۔ آصف بندشوں رکاوٹوں نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی اور وہ کسی مسیحا کی تلاش میں در بدر بھٹکنے لگا، لیکن کوئی بھی اس کے درد کا مداوا نہ بن سکا۔ وہ بوڑھا جی نہیں رہا تھا، بلکہ اندیکھی زنجیروں میں جکڑا اندیکھے دشمن سے لڑ رہا تھا۔ 25 سال بوڑھے کی شادی سے تباہی اور بربادی کا نقطہ آغاز تھا۔ اس کے کمرہ روسی سے ایک سانپ برآمد ہوا جس نے تمام گھر والوں کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ بوڑھے کو اپنی دلہن انتہائی نفرت انگیز محسوس ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ ایک دلکش خاتون تھی، لیکن اس کے اپنے خاوند کے لیے نہیں، ان کے تعلقات کو باندھ دیا گیا تھا۔ بوڑھے کی بیوی ایک صابر اور شاکر خاتون تھی۔ وہ بوڑھے کو چھوڑ کر نہ تو گئی، لیکن اس کے سارے جذبات کچلے گئے اور وہ چپکے چپکے اپنے نصیبوں پر آنسو بہانے لگتی۔ ابھی تو کہانی شروع ہوئی تھی۔ خدا خدا کر کے دعاؤں اور وظیفوں کے بعد ان کے تعلقات تو بحال ہو گئے، لیکن اب انہیں اولاد کی بندش کا سامنا تھا۔ بوڑھے کی ماں چارپائی سے لگ گئی تھی۔ اس کی بیماری پوری اسٹارٹ سے تھی۔ کبھی وہ اپنے ارد گرد سے بلیوں کو ہٹانے کے لیے کہتی اور کبھی برسوں پہلے دنیا سے جا چکے اپنے رشتہ داروں کے لیے اوپر کی منزل پر بستر لگانے کے لیے کہتی۔ بوڑھا اور اس کی بیوی دن رات ماں کی خدمت کرتے، لیکن وہ دن بدن کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی اور جس کی آنکھیں زردی مائل ہو گئیں، اور پھر ایک دن چپکے سے وہ ان کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اگلا شکار بوڑھے کا باپ بنا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ہر وقت وظائف کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے بغیر کسی کی اجازت کے دم درود شروع کر دیا اور یہی غلطی ان کو بھاری پڑ گئی۔ ان کے اوپر خون کے چھینٹے پڑنے لگے اور ایک دن ان کی ٹانگ میں زخم ہوا جو اتنا بڑھا کہ ٹانگ ایک نہیں 2 بار کاٹنا پڑی۔ ہسپتال کی تاریک راہداریوں میں اپنے باپ کی کٹی ہوئی ٹانگ اور خون آلود باپ کو اسٹریچر پر ڈالے وارڈ تک کا سفر اس بوڑھے کو جوانی میں بوڑھا کر گیا۔ برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ بوڑھے کے والد بھی ایک دن انجانے سفر پر روانہ ہو گئے، لیکن جاتے جاتے وہ میاں بیوی کو اتنی دعائیں دے گئے کہ ان کی بہو کی گود ہڑی ہو گئی۔ شادی کے برسوں بعد آخرکار خوشی نے ان کے در پر دستک دے ہی دی۔ اللہ جو چاہے کرے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ انسان ہی ہے جو حسد، رقابت، دشمنی اور نفرت کی وجہ سے رشتوں کو اندھیری قبروں میں اتار دیتا ہے۔ بوڑھے کی حاسد اور دشمن محلے دار کی چھت سے بوڑھے کی بیوی کو دیکھتی تاکہ خبر کی تصدیق کر سکے اور پھر نئے تیر آزما سکے۔ بوڑھے کا کام بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا اور ایک دن آیا کہ بند ہو گیا۔ گھر میں سے جو چیز بھی قیمتی تھی بک گئی، زیور بھی کوڑیوں کے بھاؤ بک گیا۔ 10 مرلے کا خالق گھر کاٹنے کو دوڑنے لگتا۔ جب کبھی بوڑھا گھر سے باہر جاتا تو اس کے اکیلی بیگم کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی کہ جان کے لالے پڑ جاتے۔ بوڑھا اس پر قرآن کی آخری صورتیں پڑھ کر پھونکتا تو وہ مسکرانے لگتی۔ او خدایا، یہ سب کیا تھا؟ بیگم اکثر بیمار رہتی اور ایک بار چلنے پھرنے سے معذور ہو کر 1 سال کے لیے چارپائی پر لگ گئی۔ بوڑھے کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار تھا اور وہ تھا نماز۔ اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی اور وہ ورد ذکر بھی کرتا رہتا تھا، شاید اس لیے وہ بچا ہوا تھا۔ لیکن آخر کب تک؟ گھر کی دوسری منزل جو خالی پڑی تھی انہوں نے کرائے پر چڑھا دی اور پھر ان کی زندگی میں جو تھوڑا سکون تھا وہ خواب بن گیا۔ گھر کی دوسری منزل کبھی بھی خالی نہیں تھی، وہاں کسی اور مخلوق کا مسکن تھا۔ بوڑھے کا گھر برسوں پہلے اس کے باپ دادا نے اونے پونے داموں بخوشی ایک عامل سے خریدا تھا۔ اس عامل نے گھر اپنے لیے بڑے چاؤ سے بنایا تھا، لیکن اس کے سامنے اس کے 2 بیٹے اپنے خاندان کے ساتھ پراسرار طور پر حادثاتی موت کا شکار ہو گئے تھے اور اس کی اکلوتی بیٹی پاکی ناپاکی سے بے نیاز درختوں سے بھرے صحن میں پاگلوں کی طرح اکیلی گھومتی۔ کچھ پرانے محلے داروں کا خیال تھا کہ گھر شمشان گھاٹ کے اوپر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی حقیقت سے اس کا کتنا تعلق تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس گھر کی ویرانی اس مشکوک اسے ضرور بناتی تھی۔ یہ گھر اب اس بوڑھے کی گردن کا پھندا بن چکا تھا۔ بوڑھے کے والد کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد اللہ نے بوڑھے کو ایک بیٹی سے نوازا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ بیٹی کی پیدائش پر بھی مٹھائی بانٹنے لگا۔
बुरी नजर लगने की देर नहीं लगती, इसलिए कहते हैं कि अपनी खुशी को लोगों की नजरों से छुपाना चाहिए। बूढ़े की बेटी 2 दिन की थी कि बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने अस्पताल जाने का मशवरा दिया, लेकिन बूढ़ा इसे लेकर दम करवाने पहुंच गया। अल्लाह ने करम किया, इसकी बेटी का सांस बहाल हो गया। बेटा तो फिर भी बेटा ही होता है। दोनों मियाँ बीवी आपस में बैठकर बेटे की ख्वाहिश करते और रात को सोते में बूढ़े की बीवी को घर की ऊपर वाली मंजिल से सीढ़ियां उतर कर एक सफेद आंखों वाली चुड़ैल लाकर कहती, अरे तुझे बेटा चाहिए ना, ये ले मैं देती हूँ तुझे बेटा, ये पकड़ो बेटा, और के लगाती गायब हो जाती। ये 1-2 नहीं, पूरे 17 अफराद थे जिनमें मुसलसल इजाफा हो रहा था। घर के ऊपर वाली मंजिल किराए पर देने की गलती की सजा शुरू हो गई थी। वो सब के सब नीचे ही इनके साथ आकर रहने लगी। जैसे बूढ़े और इसकी बीवी की आंखें बंद होती, वो अपना काम शुरू कर देते। कभी वो इनकी चारपाइयों को घेर लेते और कभी नंगे होकर दावते गुनाह देने लगते। कभी इनके ऊपर कूद पड़ते और कभी बूढ़े को इसकी बीवी और कभी इसकी बीवी को बूढ़े की आवाज में आवाज देते। घर में अगर कोई मेहमान कभी आ जाता तो ऐसा डर ताकि इस घर में दोबारा आने से तौबा कर लेता। इनकी बेटी आधी रात को उठ बैठती और अनजानी जुबान बोलने लगती। कभी रात के अंधेरे में कोई इनके कमरे का दरवाजा खोलता और इन्हें देखने लगता, और जैसे आंखें फाड़कर बूढ़ा देखता तो कोई भी ना होता। शहर में रंग बिरंगी बिल्लियां जमा हो जाती और रोने लगती। एक बार बेटी की फरमाइश पर इन्होंने तोता पाला। इसे अकेला छोड़कर वो कहीं गई और तो वापसी पर इसे बुरी तरह चीख रहा था, जैसे कोई बहुत खौफनाक चीज नजर आ रही हो। इन्होंने तोते को आजाद कर दिया। आखिर अपने साथ वो इसे भी क्यों कैदी बनाते? बूढ़ा और इसकी बीवी अपने साथियों से बखूबी आगाह थी। इनकी शक्लें बिल्कुल इंसानों जैसी थीं, लेकिन फिर भी वो इंसान नहीं दिखते थे। इनकी बेटी एक बार किसी एक बच्चे के साथ भी खेली जो बज़ाहिर वजूद ही नहीं रखता था। दोस्तों, आपने जो जिन्नों भूतों की कहानियां पढ़ी होंगी, इसमें इनकी भयानक शक्लें दिखाई देती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मखलूक आपको आपके प्यारों के रूप में भी दिख सकती है। एक बार तो अपने बाल खुले छोड़े, एक बच्ची इसके सामने से गुजरी जो दीवार की तरफ जाकर गायब हो गई। ऐसी मखलूक के साथ रहना मजबूत असाब वालों का काम है, और ये मखलूक चाहे घर में हो या चाहे आप पर मुसलत कर दी जाए, आज जब वो आपके साथ मानूस हो जाती है तो फिर आपको वहां से जाने नहीं देती। अब के बाद जो उम्मीद हुई तो वो दोनों बेइंतहा खुश हो गए। वो दिन गिन गिन कर गुजारने लगे। कुछ माह बाद ही बूढ़े की बेगम के पेट में पानी भरने लगा और इनका बेटा वक्त से पहले दुनिया में आकर वापस चला गया। इस बार बूढ़े को अपने नन्हे से बेटे का ठंडा बर्फीला लाश अपनी हाथों से उठाकर वो उससे दफन करना पड़ा। मुझसे लो बेटा, मैं देती हूँ तुझे बेटा। बूढ़े की बेगम के कानों में इस चुड़ैल की आवाज गूंजी और वो सदमे से बेहोश हो गई। इसकी ट्यूब्स ब्लॉक हो गई थी और अब कोई मुआवजा इसे 12 उम्मीद दिला सकता था। दोस्तों, जब तक सांस तब तक आस। बूढ़ा मजबूत असाब का मालिक था, इसने हिम्मत ना हारी। इसे बहुत से महाजों पर लड़ना पड़ रहा था। इसके रिश्तेदार इसके उलझनों से वाकिफ होकर भी इससे दूर थे। ये जख्म ऐसा था जो इन्होंने खुद ही बर्दाश्त भी करना था और भरना भी था। अगर कोई इनकी कहानी सुनता भी तो मजाक उड़ाता। इन्होंने अपने लब सी लिए। इनकी उम्मीद और इनका भरोसा सिर्फ एक ही जात थी, वही यकता मसबबुल असबाब, इनका और सब मखलूकात का खालिक जो हर चीज पर कादिर है। कोई भी मखलूक इसकी मर्जी के बरखिलाफ किसी दूसरी मखलूक को राय के दहाने के बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही सोच बूढ़े को मसीहा की तलाश पर उकसाने लगी। आखिरकार बूढ़े ने एक 80 साला बाशरह आमिल से रुजू किया। इन्होंने अपनी आंखें बंद की, इस्तिखारा किया और कहा, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत ही गलीज और गंदी मखलूक है, आप अपना घर बेच दें। बूढ़ा अपनी बेगम को और बेगम बूढ़े को देखने लगी। इनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन काम था। इन्होंने इनसे मिन्नत समाजत से एक नक्श लिया, वो महफूज रहे। ये नक्श भी घर के अंदर लगा हुआ कहीं गायब हो गया। आखिरकार इन्होंने अपने घर बेचने का फैसला कर लिया, लेकिन घर का खरीदार कोई भी नहीं था। दोस्तों, जब आप पर असरात होते हैं तो ये आपके साथ साथ आपके करीबी लोगों को भी मुतासिर करते हैं। जो कोई आपकी मदद के लिए, आपके दुख के मुदावे के लिए आपकी तरफ बढ़ते हैं, इन्हें ये मखलूक दूर कर देती है और इनके दिमागों में मुख्तलिफ वसवसे डालकर आपसे मुतनफर कर देती है। आपके मौसिन आपके दुश्मन बन जाते हैं और आपके करीबी रिश्तेदार भी आपसे उलझने लगते हैं। आप अपनी तरफ से दुरुस्त और मुखलिस लोगों को चुनते हैं, लेकिन वही लोग आपको डस जाते हैं और आपको वहां से नुकसान होता है जहां से आपको गुमान भी नहीं होता। ये कभी आपकी कुव्वत फैसला को कमजोर कर देते हैं और कभी आपकी खुद एतमादी की धज्जियां बखेर देते हैं। आप खुद से ज्यादा वसवसों पर एतबार करते हैं और इंतहाई नुकसान उठाते हैं। बूढ़े को भी अपनी बदतरीन नुकसान से 2-4 होना था। घर के गाहक नापेद हैं। अगर कोई भूले से भी आ जाता तो इंतहाई कम रेट लगाता। इंतजार की घड़ियां लंबी होती चली गई।
घर के अनदेखे मकीनों ने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी। अब तो बूढ़े को लगता जैसे इसका गला घोंटने जा रहा है कोई। वो आधी रात को उठता और बाहर मेडिकल स्टोर से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाता, जो हैरत अंगेज तौर पर नॉर्मल होता। घर के बल्ब पुरस्कार तौर पर फटना शुरू हो गए, कभी गैस बंद हो जाती। इस घर में अकेले रहना नामुमकिन हो गया। बूढ़े की बेगम को सोते में जो आसेब तंग करते, वो रब का कलाम पढ़ते हुए इनके सर मरोड़ देती। कहते हैं कि जंग में दुश्मन के लिए एक दरवाजा खुला रखना चाहिए ताकि वो भाग सके और आपको नुकसान न पहुंचाए। बूढ़े के खानदान के लिए कोई दरवाजा खुला नहीं था। इन्होंने भी अब डरना छोड़कर लड़ना शुरू कर दिया। बूढ़ा अपने आमिल के पास गया ताकि इन्हें अपने घर बेचने के फैसले से आगाह करे और इनसे मजीद रहनुमाई हासिल कर सके। वो बुजुर्ग आमिल वफात पा चुके थे। बूढ़े को बताया गया कि जितनी देर होगी उतना घर का रेट कम होता जाएगा। इसने अपना घर ओने पोनो बेचने का फैसला किया ताकि इस गलीस मखलूक से जान छूट जाए। इसे क्या खबर थी कि वो शैतानी ताकत तो इनकी रगों में दौड़ रही है। इस बार इसका शिकार बूढ़े का डीलर था। बूढ़े का डीलर एक अधेड़ उम्र शख्स था जिसने इनके घर का बरसों नमक खाया था। बूढ़े को इस पर एतमाद था, अंधा एतमाद। घर का लेन देन और नए घर की खरीदारी इसने अपने जिम्मे ली थी। ये अंधा एतबार सोया हुआ नाग साबित हुआ था जो दौलत देखकर डसने के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, इंसान के काम आता है, लेकिन इसके लिए अंदर बाहर से इंसान होना जरूरी है। आजकल इंसान बाहर से तो इंसान दिखता है, लेकिन अंदर से लालची कुत्ते से भी अबतर हो चुका है। मादियत परस्ती ने इंसान को हैवान बना दिया है। मुख्तसर ये कि मजमूई तौर पर इंसान अब ऐसा दरिंदा बन चुका है जिसे बस मौका चाहिए और फिर अपने शिकार को नोचना इसका पसंदीदा मुशगला होता है। अब अच्छे इंसान आटे में नमक के बराबर हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो फिर तजुर्बा भी मत कीजिएगा। आपके लिए बूढ़े की कहानी ये सबक हासिल करने के लिए काफी होनी चाहिए। इस यार घर के भेदी डीलर ने बूढ़े की बेबसी का फायदा उठाया और आधी रकम बूढ़े को बताए बगैर कहीं आगे अपनी जमा पूंजी के साथ कहीं 2 से 4 बनाने के चक्कर में लगा दी। वो किराए के घर में रहने वाले था और अपने घर बनाने का ख्वाब देख रहा था। इसका ख्याल था कि वो असल रकम बूढ़े को वापस करके मुनाफा हड़प कर लेगा। इस दरिंदे को क्या पता था कि वो अपनी रकम भी साथ डबो रहा है। बूढ़े के असरात इस अयार को भी ले डूबे। वो जालिम आज भी किराए पर धक्के खा रहा है। इसके शायद 7 नस्लें भी अपना घर अपनी छत न बना सकें। कहते हैं कि मजलूम बन जाओ लेकिन कभी जालिम मत बनना। मजलूम तो कभी न कभी सुकून पालेगा, लेकिन जालिम अपनी हवस की सजा ताबत तक भुगतता रहेगा। इससे मरकर भी चैन नसीब नहीं होता। बूढ़े को जब इस जुल्म का पता चला तो इस पहली बार अपने प्यारों के सामने वो रो दिया। इस रकम से तो इसने अपनी रोजी रोटी का कुछ आसरा बनाना था। 25 साल के इस जंग में पहली बार बूढ़ा अपनी हिम्मत खो बैठा। इसने अपना सर अपनी बीवी के सर के साथ मिलाया और वो दोनों खामोशी से आंसू बहाने लगे। ये बदतरीन धचका था जिसने बूढ़े की कमर तोड़ कर रख दी। जब इब्तदाई धचके से वो बाहर निकला तो इसे अपने नए घर का जायजा लेना इससे शुरू कर दिया जिसमें वो शिफ्ट हुए थे। इसे महसूस हुआ कि वो यहाँ भी अकेला नहीं है। क्या पुराने घर के अनदेखे मकीन भी इनके साथ आ गए थे? बूढ़े की बेगम ने बंद आंखों से देखा कि वो हवाई मखलूक उड़ती हुई इनके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। इनका शक यकीन में बदल गया। बूढ़े ने अपने प्यारों को देखा और इनकी खातिर अपना झुका हुआ सर दोबारा उठा लिया। ये इसका ही फर्ज था जो इससे निभाना था। इसने अपनों को तसल्ली दी और किसी नई मसीहा की तलाश में निकल पड़ा। इस बार इस बूढ़े का पाला एक ऐसे आमिल से पड़ा जो मोबाइल पर अपनी पब्लिसिटी साथ साथ किया करता था। इसने बूढ़े को कुछ वीडियोस दिखाए जिसमें वो लोगों के घरों में जाकर खवातीन के आसेब का इलाज करता हुआ दिखाई दे रहा था। बूढ़े के लिए हैरत अंगेज लेकिन मशकूक बात थी कि इसके लिए इसका तरीकाकार नाकाबिले कबूल था। खैर, इसने एडवांस में हजारों रुपयों का मुतालबा किया और साथ पाबंदी लगाई कि घर वालों ने 7 रोज तक कहीं नहीं जाना और वो रोजाना की बुनियाद पर इनके घर आकर इनका इलाज करने आया करेगा। बूढ़े को अपनों से ज्यादा अपनों की फिक्र थी। वो नए मोहल्ले में ऐसा इलाज कैसे करवाता जो उन्हें मशकूक बना देता। इसी के पास तो रकम भी नहीं थी। बूढ़े ने माशत कर ली और वो क्या कर सकता था। बूढ़े को किसी ने शादी का बताया और वो इनके पास चला गया। वो रकम का तकाजा नहीं करते थे। बाशरा और बामल इमाम मस्जिद थे। इन्होंने बूढ़े को बताया कि जो उसके घर के मकीन थे वो तो वही थे, लेकिन जो बूढ़े पर मसलत किए गए थे वो इनके साथ ही थे। इन्होंने मजीद कहा कि 25 साल से इस बूढ़े के साथ हैं और आसानी से जान छोड़ने वाला नहीं। लेकिन शाहजी ने इसे तसल्ली दी कि कलाम रब्बी के सामने गलीज मखलूक गंदे पानी की तरह बह जाएगी इंशाल्लाह। शाहजी ने बूढ़े को दम किया और महसूस हुआ कि वो अनदेखी जंजीरों से आजाद हो गया है। इसे लगा कि इसकी सारी परेशानी खत्म हो गई है। दोस्तों, असरात जब भी पड़ते हैं आपका जहन मफलूज हो जाता है, आपका जिस्म जकड़ा जाता है, आप दिन
दिन रात अपनी परेशान होकर अब आपका सुकून बर्बाद कर डालते हैं। जब किसी अल्लाह वाले की नज़र हो जाए तो फिर आपकी मुश्किल मौजूद होते हुए भी आपको अजियत नहीं देती। आप अपना दुख भूल जाते हो, आप खुद को याद करने लगते हो, आप अपने खालिक को याद करने लगते हो। और यही वो लम्हा होता है जब इस खैर शर की जंग में शर को अपनी शिकस्त साफ नजर आने लगती है और वो अपने सारे हथियार अपने शिकार पर आजमाने लगता है। बूढ़े को शाहजी ने अपनी जंग खुद लड़ने के लिए कहा। बूढ़ा नमाज का पाबंद था और तहज्जुद गुजार भी था। इसके दुख ने इसे अपने रब के नजदीक कर रखा था। वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हुए रहम की भीख मांगा करता था। शाहजी ने इसकी रूहानियत को भांप लिया था। बूढ़ा हाफिज कुरान भी था। शाहजी ने इसे अमाल कुरानी से सरफराज कर दिया और बूढ़ा अपनी जंग लड़ने के लिए बेचैनी से इंतजार करने लगा। आसेब इसकी नस्ल में सरायत करने लगा और बूढ़े के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। ये जंग कोई आसान नहीं थी, इसमें बूढ़े की जान भी जा सकती थी। दोस्तों, आमिल कोई जादूगर नहीं होता, वो रातों रात आपका काम नहीं कर सकता। हकीकत यह है कि करने वाली जात अल्लाह की है। आमिल सिर्फ आपको दुआया कलमात सिखाता है ताकि आपकी तक किसी की तकरार करके अल्लाह की नजर रहमत से फैज़याब हो सके। कभी वो आपकी रूहानियत की सतह बुलंद ना होने की वजह से आपको तावीज़ देता है और कभी आपके लिए खुद अमल करता है। लेकिन मरीज दवा खुद खाए तो ही सेहतयाब हो सकता है। लेकिन कभी आमिल को मरीज की दवा खुद खाना पड़ जाती है, जिससे वो और इसका खानदान भी मुतासिर हो जाता है। हदिया लेना इसका हक है, इसमें भी असबाब का मोहताज होता है वो। उसके साथ साथ इंसानी जरूरियात ऐसी जुड़ी होती हैं जैसे कि हमारे साथ। अगर कोई आमिल फी सबीलिल्लाह भी आपकी खिदमत करे तो भी आपका फर्ज है कि इसका और इसके बच्चों का ख्याल करते हुए इन्हें मुनासिब हदिया पेश करें। बाकी अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, पहचान आपने खुद करनी है। आप सबसे पहले देखें कि आमिल का ताल्लुक अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ कितना है। इसका साइलिन के साथ कैसा रवैया है, खास तौर पर गुरबा के साथ वो कैसे पेश आता है। याद रखें, आलिमुल गायब सिर्फ अल्लाह की जात है। आमिल कभी भी आपको आने वाली जिंदगी की सच्ची खबर नहीं दे सकता। इस्तिखारा भी आप खुद करें, ना कि किसी और से करवाएं। और याद रखें, हमारे मामलात में शैतान और जन्नात के असरात भी होते हैं कि हम गुनाहगार इंसान हैं। इस्तिखारा जरूर करें, लेकिन इससे पहले दूध की कसरत करें, दुरूद की कसरत करें और अल्लाह की हम्दो तस्बीह के साथ साथ इस्तिगफार करना मत भूलें, ताकि आप पर रहमतों का नज़ूल हो और फिर आप अपने रब से सिरात मुस्तकीम की दुआ मांगकर इस्तिखारे का अमल करें। ख्वाब अमाल की दुनिया में इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। कुछ ख्वाब अलामती होते हैं, जैसे सांप, कुत्ते, भैंस और छिपकले वगैरह दिखना। कुछ ख्वाब की अलामतें सिर्फ एक मुफस्सिर ख्वाब ही बयान कर सकता है। लेकिन हमेशा अपने दिल में रखें कि अगर आपको लगता है कि कुछ बुरा है तो फौरी तौर पर अपना सदका उतारें। याद रखें, अमाल के पहले 3 दिनों में ही ख्वाबी इशारों के जरिए आपकी कामयाबी की तस्दीक कर दी जाती है, लेकिन वक्त का तयन अल्लाह की हिकमत पर मुनहसर होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि सूरज, चांद, सितारे इनको सजदा कर रहे हैं तो एक अच्छा ख्वाब था, लेकिन इसकी ताबीर के बरसों बाद पूरा होने से पहले इन्हें कई तकलीफों से गुजरना पड़ा। जो आमिल कहते हैं ना कि इसके कलाम रब्बी की बरकत से काम लाजमी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि इनके जायज काम के पूरा होने का फैसला अल्लाह फौरी कर देगा। इंशाअल्लाह इसका ज़हूर कब होता है ये अल्लाह जानता है। अपने तमाम कामों में अल्लाह से मदद मांगें कि वो ही मसबुल असबाब भी है। अपनी आंखें खुली रखें और देखें कि खालिक कौन सा दर किस जरिए से आपके लिए खोलता है, चाहे बज़ाहिर आप किसी बंद गली में ही क्यों ना फंस गए हों। याद रखें, आपका राज़िक अल्लाह पत्थर में बंद कीड़े को रिस्क पहुंचाने पर कादिर है। इस जात पर तवक्कल कीजिए जैसा कि तवक्कल करने का हक है। अल्लाह से अच्छा गुमान रखें और सिराते मुस्तकीम पर चलते रहें, गैबी मदद जरूर उतरेगी इंशाअल्लाह। चले अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बूढ़े को पहली बार एक आमिल ने बाकायदा अमाल और वज़ाइफ़े अनाद किए थे। पहला वजीफा ताउस का था और बूढ़े को लगा कि जैसे इसकी जुबान बंद हो गई हो, इसके हल्क में कांटे चुभने लगे और वो बोलने से कासिर हो गया। बहरहाल इसने तय किया हुआ था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, चुनाचे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। इसने आधी रात को तन्हाई में भी वज़ाइफ किए और दिन के उजाले में भी अमाल किए, लेकिन वो अल्लाह के सामने तहज्जुद के वक्त सजदा रेज़ होकर अमाल बजा लाता और कभी कयाम करते हुए सूरह इखलास का वर्द करने लगता। शर की कुव्वतें भी इसके खिलाफ डटी हुई थीं। कभी बूढ़े को वज़ाइफ की तादाद के बारे में शकूक व शुबहात पैदा होते थे और कभी इसे अपने इर्द गिर्द किसी की मौजूदगी का एहसास होता। एक बार तो वो भूल ही गया कि इसने पढ़ना क्या था। इसका ज़हन खाली स्लेट की तरह हो गया। असल जंग तो इस वक्त शुरू हुई जब बूढ़ा तहज्जुद और फजर के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करता। इसकी आंखें बंद होती, इस पर कभी ईंटें बरसने लगती जो हसार की वजह से इसके इर्द गिर्द गिरती।
کبھی بھینس اس کے پیچھے بھاگتی اور کبھی شیر اس کے ارد گرد پھرنے لگتے، لیکن اللہ کے کلام کی برکت سے وہ ہمیشہ محفوظ رہتا۔ ایک بار بوڑھے کی قمیض بھی الماری میں غائب ہو گئی، جو کچھ دن بعد برستی بارش میں کوئی گھر کی چھت پر پھینک گیا۔ بوڑھے نے شاہ جی کی بیعت بھی کر لی تھی اور مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں تھا۔ ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا عمل کرتے ہوئے مہینوں نہیں 2 سال بیت گئے، اور وہ رات بھی آ گئی جب شاہ جی نے بوڑھے کو سورۃ مزمل کا عمل عنایت کیا۔ کلام مقدس کو تسبیح پانے کے گلاس میں ڈبو کر سینکڑوں بار تہجد سے پہلے پڑھنا تھا۔ پہلی رات کے عمل کے بعد جب بوڑھے کی آنکھ لگی تو اسے اپنی بیگم دکھائی دی، جو انتہائی غصے میں تھی۔ وہ اس کا گلا دبانے کی فکر میں تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی چھوٹی بیٹی اس کی طرف بھاگتی ہوئی آ رہی ہے۔ بوڑھے نے خوشی سے اس کو اپنی باہوں میں لینا چاہا کہ اچانک اس نے اپنے نوکیلے دانت اپنے باپ کی گردن میں پیوست کر دیے۔ بوڑھا ششد رہ گیا، لیکن کلام ربی کی وجہ سے وہ اذیت سے محفوظ رہا۔ دوسری رات کے عمل کے بعد اس کا سامنا ایک بار پھر اس کی بیوی کے روپ میں شیطانی مخلوق سے ہوا۔ اس بار وہ زاروں قطار روئے جا رہا تھا۔ بوڑھے نے اس سے سختی سے پوچھا، بتاؤ رقم کہاں ہے؟ تو جواب آیا، تو کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ بوڑھا نیند سے میں بھی سوچ رہا تھا کہ یا اللہ، ان کا کوئی اور بھی ہے۔ وہ تیسری اور آخری رات کے عمل کے بعد سامنے آیا۔ بوڑھے نے دیکھا کہ کوئی نیچے گرا پڑا ہے اور اس کے ساتھ میں اس کا دل نکال کر پڑا ہوا ہے اور بوڑھے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھتا رہتا ہے۔ اب دیکھو اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ دوستو، جب بھی کوئی عمل کریں اس کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں۔ پھر بوڑھے نے دیکھا کہ جیسے بہت سے شیطانی چیلے اپنے ساز و سامان کے ساتھ کوچ کر گئے ہیں۔ انہوں نے کلام ربانی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ وہ بوڑھے اور اس کے پیاروں کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئے تھے۔ سوتے میں بھی بوڑھے نے الحمدللہ کہا۔ بے شک تمام تعریفیں اس ذات کو زیبا دیتی ہیں جو بے نیاز ہو کر بھی اپنی مخلوق کے دکھوں سے بے خبر نہیں۔ بوڑھا آنکھ کھلتے شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے استخارہ کیا اور بوڑھے کی بات کی تصدیق کر دی۔ شاہ جی نے بوڑھے کو تاحیات پڑھنے کے لیے اعمال اور وظائف عنایت فرمائے اور اسے ہمیشہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی پیروی کرنے کی تلقین کرتے ہوئے اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ بوڑھا مالی طور پر انتہائی کمزور حالت میں تھا۔ اس کے احباب کب سے اسے چھوڑ گئے تھے۔ اس کے رشتہ دار بھی اس کی حالت دیکھ کر منہ موڑ گئے تھے۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے اور آپس میں باتیں کرتے کہ اس نے سب کچھ اجاڑ دیا۔ دوستو، اگر آپ کسی کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے تو نمک بھی مت چھڑکیں۔ یاد رکھیں، اللہ شاہ کو گدھا اور گدھا کو شاہ بنانے پر قادر ہے۔ اگر سب کچھ انسان کے اختیار میں ہوتا تو رب کی ذات کی کبریائی پر کون یقین رکھتا؟ تقدیر موت کی طرح ہوتی ہے۔ ہم کسی کی دنیا سے جانے پر اس کے عزیزوں کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یہی نا اللہ کی رضا تھی۔ دوستو، کچھ بھی کسی کے ساتھ برا ہونے پر یہ کہنا چاہیے اور جتنا ہو سکے دکھوں کے دل جوئی کرنی چاہیے کہ یہی زندگی کی انسانیت کی معراج ہے۔ صابر وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کچھ برا ہو جانے پر صبر کرے۔ صبر کرنے والی ذات کو تو وہ ہے جو اپنے بندوں کے حالات ان کے ذریعے بدلتی رہتی ہے۔ بوڑھے نے اپنا گھر پھر بیچ دیا اور ایک گھر میں شفٹ ہو گیا۔ بوڑھے سے ایک روز کسی نے پوچھا، بابا اب کیا کرو گے؟ کہنے لگا، کرنا کیا ہے، انتظار کروں گا۔ کس کا انتظار؟ اپنی بچیوں کے حق کا، کہ کب اللہ مجھے دوبارہ واپس ادا کرتا ہے۔ ارے بابا، اب بھی امید رکھتے ہو؟ کیوں نہیں؟ ہر روز تہجد میں اپنے قادر الملک سے اپنے رب سے دعا کرتا ہوں میری بچیوں کا حق جو اس نے دے کر بھی لے لیا واپس عنایت فرما دے۔ جانتے ہیں اشارہ ہو چکا ہے مراد پوری ہونے کا، بس اللہ سے التجا ہے کہ جلدی عطا فرما دے۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کیا کروں گا؟ بوڑھے کی آنکھیں نمآلود ہو گئیں۔ بابا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ دعا کر دو بیٹا، کہ دعا تقدیر کا رخ بدل دیتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھا وہاں سے چل دیا۔ اختتام۔